So we'll be starting with the new chapter, capital structure, financing decision, capital structure. What do you mean by capital structure? Now, to some extent, we have already discussed on the first lecture capital structure. कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में अगर आपको याद हो तो फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था. What do you mean by capital structure? First, what do you mean by this chapter is also very simple. एक क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा इसके ऊपर. This chapter comprises two parts. One is the theories relating to capital structure. यहां पे आप देख सकते हो capital structure theories. ठीक है, इंपॉर्टेंटली 4 theories है जो हमें स्टडी करना है. एंड द सेकेंड पार्ट इज डिसाइडिंग अ कैपिटल स्ट्रक्चर. ओके, दो पार्ट में हम ये चैप्टर डिवाइड कर सकते हैं. तो इनिशियली विल बी स्टार्टिंग विद द कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज एंड द सेकेंड what should be the capital structure to be selected. Okay, now this discussion you'll understand only if you know what do you mean by capital structure. Capital structure मतलब क्या? On the first day was everyone awake? हाँ, so that day we have discussed what is meant by capital structure. With an example? With an example you can tell. हाँ, exactly, the proportion of different source of capital, right? Whether it should be by more of equity, preference shares, debentures, bank loan, etc., and it can be in any percentage or any ratio, right? So you can say capital structure means simple words में mix of different source of capital. बराबर, it can be in any percentage, and for deciding this different mix of capital structure or more of equity चाहिए या more of debt funds चाहिए, इसलिए some factors we have considered कि own funds, equity and loan funds debt के लिए we will be considering some factors, right? कौन से factors हमने discuss किए थे? Second point we can say factors. First, cost of capital, exactly the most important, cost of capital. कॉस्ट ऑफ कैपिटल के केस में इक्विटी शेयर प्रेफरेबल है या डेट प्रेफरेबल है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपनी? विच इज चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस? डेट ना. कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ इक्विटी इज वेरी हाई, इट इज मोर कॉस्टलियर, एंड डेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज लोअर, it was cheaper. What was the reason for these two reasons we have discussed? What was the reason? हाँ संदेश? टैक्स बेनिफिट, एग्जैक्टली. डेट के ऊपर जो हम रिटर्न पे कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज टैक्स डिडक्टिबल. तो बिकॉज ऑफ डेट फंड इंटरेस्ट हमारा टैक्स सेव हो रहा होता. बट इन केस ऑफ इक्विटी शेयर्स व्हाट रिटर्न वी आर पेइंग वाज डिविडेंड एंड दैट इज नॉट टैक्स डिडक्टिबल, इसलिए आपका टैक्स में कोई सेविंग्स नहीं होगा. दैट वाज वन रीजन. एंड अनदर रीजन, डू यू रिमेंबर वी हैव डिस्कस विद एग्जांपल कि अगर मेरी कंपनी है, आपको इन्वेस्ट करना 1 लाख रुपए, मैंने आपको ऑप्शन दिया है कि आप मेरी कंपनी में आइदर इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करो या डेट में इन्वेस्ट करो. दोनों केस में, इक्विटी शेयर्स के केस में एज वेल एज डेट के ऊपर, मैं आपको 10% रिटर्न दे रहा हूं. मतलब अगर आप मेरे कंपनी के इक्विटी शेयर्स इन्वेस्ट करोगे आपको 10% से डिविडेंड मिलेगा. अगर आप मेरे कंपनी के डेट परचेस करते हो तो आपको 10% से इंटरेस्ट मिलेगा. विच विल बी प्रेफरिंग मोर? डेट. क्यों? क्योंकि वहां पे सिक्योरिटी है एंड रिस्क इज लोअर. जब आप इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, यू आर बियरिंग द अल्टीमेट रिस्क, राइट? तो एज यू आर बियरिंग द रिस्क, आपके एक्सपेक्टेशन भी हायर होंगे. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंटली, द rate of return expectations of investors are very high as compared to debt holders expected return, and because of this cost of equity is always higher, right? So we can say this cost is normally reflected by K. फाइनेंशियल मैनेजमेंट में
cost of capital is normally reflected by K. तो cost of equity is reflected like this, KE, and cost of debt is reflected like this, KD. तो हमेशा और most of the times cost of equity will be more than cost of debt. ठीक है? तो second point what we have to consider was risk. तो इक्विटी शेयर्स में रिस्क ज्यादा है या डेट में रिस्क ज्यादा है? इक्विटी शेयर्स में रिस्क ज्यादा है, रिस्क इक्विटी शेयर्स में कम है, राइट, एंड डेट में रिस्क ज्यादा है. एंड व्हाट रिस्क वी आर टॉकिंग ऑफ ओवर हियर? द ऑब्लिगेशन टू रीपे द इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल इररिस्पेक्टिव ऑफ योर लिक्विड प्रॉफिट. आपके पास पैसे हो या ना हो, डेट के केस में इंटरेस्ट एंड व्हाटएवर इज द प्रिंसिपल आपको ड्यू डेट के अंदर पे करना ही होगा. बट इन केस ऑफ इक्विटी शेयर्स नाइदर डिविडेंड nor repayment of capital is not obligated, right? एक और पॉइंट था जो यहां पे कंसिडर करना है, उस टाइम हमने कंसिडर नहीं किया था, डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल. व्हाट डू यू मीन बाय डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल? कंट्रोल विल गेट स्प्लिट, राइट? सपोज एक कंपनी है जिसमें दो ही शेयर होल्डर्स है, से ए एंड बी, ठीक है? बीइंग द शेयर होल्डर्स दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी. तो अब जब कंपनी रन हो रही है तो डिसीजन मेकिंग कौन करेगा? ए एंड बी. सो कैन वी से उनका कंट्रोल 50% 50% है, राइट? अब से फॉर एग्जांपल कंपनी को 10 लाख रुपए की जरूरत है, ओके? तो अगर उन्होंने लोन लिया या डेट होल्डर से फंड लिए, तो डेट होल्डर्स और बैंक विल दे बी पार्टिसिपेटिंग इन डिसीजन मेकिंग ऑफ द कंपनी? नो. इसका मतलब ए एंड बी का कोई कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होगा इन दैट केस. बट सपोज 10 लाख जो चाहिए थे उनको बैंक से या डेट होल्डर्स इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए उन्होंने एक नया पर्सन सी को एज ए इन्वेस्टर, एज ए इक्विटी शेयर होल्डर एडमिट कर लिया, ओके? तो नाउ विल देयर कंट्रोल विल गेट डाइल्यूटेड? डेफिनेटली. पहले जो दो लोग कंपनी रन कर रहे थे 50-50%, नाउ थर्ड पर्सन जब एडमिट होगा तो नाउ इट विल बी 33-33-33%, बराबर? मींस जब आप इक्विटी शेयर्स ज्यादा इशू कर रहे हो तो कंट्रोल विल गेट डाइल्यूटेड, राइट? सो यहां पे इक्विटी शेयर्स के केस में कंट्रोल सबसे ज्यादा डाइल्यूट होता है. बट इन केस ऑफ डिबेंचर्स या लोन फंड्स कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होता आपका, राइट? नाउ डिपेंडिंग अपॉन दिस बेसिक पॉइंट्स वी हैव टू डिसाइड व्हाट शुड बी द मिक्स. मींस सपोज आई एम द पर्सन हु डज लाइक टू टेक रिस्क, ओके, एंड माय कॉस्ट ऑफ कैपिटल, माय ऑब्जेक्टिव शुड बी मिनिमम. तो मैं कौन से फंड्स ज्यादा यूज करूंगा? डेट फंड्स. क्योंकि क्या होगा, डेट फंड्स यूज करने से मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम आएगा, क्योंकि डेट इज चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, एंड मेरा रिस्क इंक्रीज होगा. आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद द रिस्क इंक्रीज, एंड साथ ही साथ मेरा कंट्रोल भी डाइल्यूट नहीं होगा, राइट? सो आई विल बी गोइंग मोर फॉर डेट फंड्स. से 70% मेरे लिए ठीक है, 70% डेट फंड्स, 30% मेरे खुद के फंड्स इन्वेस्ट किए. बट सपोज यू आर द पर्सन हु डोंट लाइक टू टेक रिस्क. आपका भले कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज भी हुआ तो भी चलेगा, लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहिए. तो यू विल बी गोइंग मोर फॉर इक्विटी फंड्स. सिर्फ आपके हिसाब से 60% इक्विटी फंड्स, 40% डेट फंड्स. आर यू गेटिंग? So no doubt this capital structure decision, this mix is subjective concept, person to person change होगा, लेकिन which funds you should be using more, that will be deciding on the basis of these factors, right? Apart from that there are other factors also, that is leverage, say taxation impact. Taxation also will have affect. अगर मैं taxation consider कर रहा हूं तो debt funds is more better. Reason is in case of debt funds interest जो मैं पे करूंगा that is tax deductible, तो मेरा tax में saving होगा. अगर मैं इक्विटी शेयर ज्यादा प्रोक्योर करूं तो जब मैं डिविडेंड दे रहा हूं तो एटलीस्ट इन अप टिल प्रीवियस ईयर डिविडेंड वाज टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ कंपनी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, तो कंपनी का आउटफ्लो ज्यादा होगा. सो फ्रॉम टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू डेट फंड्स वर मोर बेटर, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर पॉइंट्स जो अफेक्ट करेगा मेरे कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन को? जस्ट एज अ रैंडम डिस्कशन. वैसे तो ये 3 फैक्टर्स ही दिए आपके मॉड्यूल में जो आपको कंसीडर करना है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट some other factors also we can consider. These are the important points, okay? Other factors में मैंने आपको एक बताया, taxation. From taxation point of view debt is more better. More in the sense जो proportion ले रहे हो आप, ज्यादा debt का proportion अगर लो तो अच्छा होगा from the point of view of taxation. What could be other factors that will be affecting the decision of your capital structure? मतलब कौन सा mix लोगे आप, more of debt, more of equity, ये कौन से factors पे depend कर सकता है? टाइम ऑफ रीपेमेंट, ओके, टाइम ऑफ रीपेमेंट. अब हाउ इट विल अफेक्ट?
राइट, बट दिस विल बी कंसिडर इन द रिस्क पॉइंट। रिस्क में सिमिलर पॉइंट ओनली हमने कंसिडर किया हुआ है कि टाइम ऑफ रीपेमेंट यहाँ पे डिले नहीं कर सकते, देयरफॉर दैट वाज कंसिडर्ड एज रिस्क। ओके, इकोनॉमिक फैक्टर्स कुछ तो कहा था किसने? हाँ, इकोनॉमिक फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करेगा? अकॉर्डिंग टू या डेफिनेटली मींस इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से हो सकता है कि आपकी इकोनॉमिक साइकिल जो है वो चेंज होगी, एंड बिकॉज ऑफ दैट माइट बी आवर कैपिटल स्ट्रक्चर विल गेट अफेक्टेड। फॉर एग्जांपल, सपोज बिकॉज ऑफ सम ऑफ द इकोनॉमिक फैक्टर्स, इकोनॉमिक जो साइकिल है वो अब रिसेशन में चल रही है, राइट? हैव यू ऑल स्टडीड इकोनॉमिक साइकिल? फाउंडेशन में स्टडी किया रहेगा आपने, बूम, डिप्रेशन एक्सेट्रा। करंटली आवर इकोनॉमी से रिसेशन में चल रही है। नाउ इन रिसेशन व्हाट हैपेंस, नॉर्मली स्टॉक मार्केट इज आल्सो डाउनवर्ड फॉलिंग, ठीक है? एंड सपोज आज के दिन मुझे कंपनी स्टार्ट करनी है, वैसे तो रिसेशन के फेज में नई कंपनी मोस्टली स्टार्ट नहीं करनी चाहिए, बट मैंने कंपनी स्टार्ट की, ठीक है? अगर मैं इस टाइम पे लोन सॉरी इक्विटी फंड्स यूज करूं, ठीक है, 1000 सपोज मैंने वैल्यू डिसाइड किया इक्विटी शेयर्स की, तो क्या होगा जब इश्यू करूंगा 1000 की वैल्यू नीचे आएगी, मतलब वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स, बेसिकली इक्विटी शेयर्स विल बी रिफ्लेक्टिंग द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स ओनली, तो वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स विल कम डाउन, राइट? सो एट द टाइम ऑफ से रिसेशन इट इज नॉट एडवाइजेबल टू गो फॉर इक्विटी फंड्स, क्योंकि मार्केट वैल्यू कम आएगी बिकॉज स्टॉक मार्केट विल बी फॉलोइंग, राइट? अपार्ट फ्रॉम दिस एनी अदर फैक्टर? Can we say gestation period? What do you mean by gestation period? Have you ever heard? ऐकले? Where you heard? Somewhere. Somewhere on the earth. Normally it is trending. Insta वरती फोटो दाखवून एक असते somewhere on the earth. Anyways, gestation period means that period when you are starting the company till that period when your actual income will be earned. मतलब सपोज मेरी एक कंपनी स्टार्ट करने का प्रोजेक्ट, नई कंपनी स्टार्ट कर रहा हूं, तो मुझे कैपिटल आज लगेगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो आज करना पड़ेगा, बराबर? से इट वाज रिलेटिंग टू कंस्ट्रक्शन, तो पहले तो मुझे मशीनरी परचेज करनी होगी, सेटअप करना होगा, इसमें 6 मंथ जाएंगे, लेकिन फंड्स तो मुझे शुरुआत में चाहिए होंगे, बराबर? तो यहाँ पे फंड्स तो मुझे यहाँ पे लग रहे से 10 करोड़, ओके, 6 मंथ जाएंगे सेटअप करने में ही, राइट? उसके बाद जब मेरा प्रोडक्शन या जो भी एक्टिविटी स्टार्ट होगी, इमीडिएटली कैश इनफ्लो नहीं आएगा, पहले 5-6 मंथ तो बिजनेस नहीं रहेगा, ठीक है? और से फॉर एग्जांपल मेरा रोड डेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट, तो जब तक मैं पूरा रोड कंस्ट्रक्ट करके ना दूं तब तक मैं रेवेन्यू, टोल रेवेन्यू एक्सेट्रा कलेक्ट नहीं कर सकता, तो जो रोड डेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट था आगे जाके 6 मंथ्स और लगने वाले, तो बाय द एंड ऑफ फर्दर 6 मंथ्स माय प्रोजेक्ट विल गेट कंप्लीटेड। तो मेरा एक्चुअल रेवेन्यू कहां से स्टार्ट होगा? आफ्टर दिस टोटल 12 मंथ्स, बराबर? 12 मंथ्स के बाद यहां से मेरा रेवेन्यू स्टार्ट होगा, राइट? सो दिस 12 मंथ्स इज कॉल्ड एज gestation period, the period which will be starting from the starting of the project till our income earning activity will be started. इसलिए जब भी आप बैंक में जाते हो लोन लेने के लिए फॉर द प्रोजेक्ट, नॉर्मली वी आस्क फॉर मोरेटोरियम पीरियड, दैट मोरेटोरियम पीरियड इज फॉर gestation period। मोरेटोरियम पीरियड मतलब आज आप लोन ले रहे हो, अगले मंथ से ईएमआई स्टार्ट नहीं होगा, ईएमआई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द मोरेटोरियम पीरियड विच बैंक्स ऑफर, ठीक है? 6 मंथ, 1 साल, अगर 1 साल का बैंक ने ऑफर किया तो लोन तो आप ले रहे हो, ऐसा नहीं कि 12 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट नहीं लगेगा, इंटरेस्ट चार्ज होगा, लेकिन रीपेमेंट आपका स्टार्ट होगा 12 मंथ्स के बाद। क्यों? क्योंकि इमीडिएटली लोन लेने के बाद आपका इनकम अर्निंग एक्टिविटी स्टार्ट नहीं। ओके, तो मुझे बताइए आप, अगर प्रोजेक्ट का गेस्टेशन पीरियड ज्यादा हो, 1 साल, 2 साल, 3 साल एक्सेट्रा, मतलब बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट्स जो होते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एक्सेट्रा, वहां पे 1 साल, 2-2 साल लगते हैं कंप्लीट होने में, उसके बाद आपका रेवेन्यू स्टार्ट होगा। ओके, तो अगर आपका गेस्टेशन पीरियड ज्यादा हो, 2 इयर्स, 3 इयर्स एज सच, तो लोन फंड्स इज बेटर और इक्विटी फंड्स इज बेटर? थिंक। इक्विटी विल बी बेटर, क्योंकि हर टाइम बैंक आपको मोरेटोरियम नहीं देगा, ठीक है? अगर दे भी रहा है तो 6 मंथ्स का से फॉर एग्जांपल दे रहा है, लेकिन आपका गेस्टेशन पीरियड तो 2 साल का है। अगर 2 साल मतलब 2 साल के बाद आपका इनकम अर्निंग एक्टिविटी स्टार्ट होगा, बट ईएमआई विल बी स्टार्टिंग अर्लियर, सो वेयर फ्रॉम यू विल बी रीपेइंग द ईएमआई देन। सो इन व्हेनेवर गेस्टेशन पीरियड इज हायर, मोर ऑफ इक्विटी इज बेटर, क्योंकि इनकम स्टार्ट होने के पहले आपका ऑब्लिगेशन नहीं आना चाहिए, राइट? सो दिस आल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स व्हिच विल बी अफेक्टिंग योर डिसीजन फॉर कैपिटल स्ट्रक्चर। अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट कुड बी अदर फैक्टर? Say size,
ऑफ कैपिटल। नॉर्मली छोटा मोटा जो बिजनेस होता है वो ओन फंड से स्टार्ट करते हैं, बट वेन एवर द अमाउंट इज इन क्रोर्स, पार्ट अमाउंट वी इन्वेस्ट एंड पार्ट अमाउंट वी टेक फ्रॉम द फाइनेंसर्स, राइट? So this will be also affecting our decision of capital structure. So these are some of the factors which will be affecting the decision of capital structure. बराबर? Is your capital structure decision important? डेफिनेटली हमने एग्जांपल के साथ लेवरेज में वही देखा है कि जब आप पूरा इक्विटी से फाइनेंस करके बिजनेस कर रहे हो, how it affects, and when you are taking debt content into capital structure, how you are able to magnify the return, right? So long term में this decision will be having a huge impact. एक तो profitability, जब आप टू सम एक्सटेंट डेट कंटेंट यूज करते हैं, इफ यू आर हैविंग फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज, तो यू विल बी एबल टू जनरेट हायर रिटर्न फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। बट साथ ही साथ अगर आप टू मच ऑफ लोन फंड्स इफ यू आर टेकिंग, आपका लिक्विडिटी क्राइसिस में आएगा। एंड बेसिकली दिस इज होल साइकिल। अगर आपके पास आज लिक्विडिटी क्राइसिस हो, जस्ट इमेजिन करो एक बिजनेस सिनारियो, ओके? अब आपने कभी बिजनेस में काम नहीं किया इसलिए आपका विजुअलाइजेशन उतना नहीं होगा, बट देन I have gone through the same. जब मैंने कंपनी ज्वाइन किया था, that company was going into liquidity crisis. इससे इंपैक्ट क्या होता है? जस्ट विल ट्राई टू विजुअलाइज कि कैपिटल स्ट्रक्चर अगर डिसीजन आपका गलत हो तो कैसे कंपनी को लॉन्ग टर्म में सफर करना पड़ सकता है। ठीक है, सपोज आपने लेवरेज का कंसेप्ट स्टडी किया था, यू नो कि जब भी आप डेट कंटेंट यूज कर रहे हो बिजनेस में, तो यू विल बी एबल टू मैग्नीफाई द रिटर्न्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, राइट? इसलिए बिकॉज ऑफ दैट यू आर गॉन मोर फॉर लोन फंड्स। ओके, तो उससे क्या हुआ? नो डाउट कि से रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज 10%, नो डाउट इट वाज फाइनेंशियल फेवरेबली फाइनेंशियल लेवरेज, यू विल बी एबल टू जनरेट हायर रिटर्न फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है अभी? सपोज आपका जो इनकम है वो पोस्टपोन हो रहा है, से 2 मंथ्स 3 मंथ्स, बिकॉज ऑफ से डेटर्स आर टेकिंग दैट मच क्रेडिट पीरियड, लेकिन आपका ऑब्लिगेशन ईएमआई तो मंथली जाएगा, तो आपको लिक्विडिटी क्राइसिस आएगी। ठीक है, तो लिक्विडिटी क्राइसिस की वजह से क्या होगा? जो भी आपके पास पैसे आ रहे हो वो ईएमआई के लिए जा रहे, तो नाउ यू आर नॉट एबल टू परचेज द गुड्स फ्रॉम द क्रेडिटर्स। ठीक है, ऑलरेडी पिछला पेमेंट हमने दिया नहीं रहेगा बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी क्राइसिस, तो वो अभी न्यू सप्लाई नहीं करेगा आपको। अगर वो सप्लाई नहीं करेगा तो आपका प्रोडक्शन हैम्पर होगा। प्रोडक्शन अगर हैम्पर हो रहा है तो आगे जाके अपने जो सेल्स ऑर्डर है वो हम मीट नहीं कर पाएंगे, तो डेटर्स हैप्पी नहीं होंगे अभी, तो डेटर्स भी आगे जाके आपको ऑर्डर्स नहीं देंगे, तो इससे क्या होगा? आपका प्रोडक्शन इन्हीं में कम आ रहा था, नाउ सेल्स ऑर्डर विल बी आल्सो लोअर साइड, राइट? तो सेल्स ऑर्डर अगर कम आ रहा है तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम आएगी, राइट? साथ ही साथ लिक्विडिटी क्राइसिस की वजह से आप अपने एम्प्लॉयज को भी सैलरी पे नहीं कर पाओगे, राइट? स्मॉल स्मॉल पेमेंट्स विल नॉट बी एबल टू पे, तो देयरफॉर स्किल वर्कर्स जो है वो आपके पास कंपनी में काम ज्यादा देर तक नहीं करेंगे, दे विल लीव द कंपनी। नाउ जो प्रोडक्शन ऑलरेडी कम आया था, स्किल लेबर्स ना होने की वजह से और भी कम आएगा, एंड नाउ प्रोडक्शन बहुत सारा कमाने की वजह से द कंपनी विल बी गोइंग इनटू लॉस। आर यू गेटिंग? एंड वंस यू आर गोइंग इनटू लॉस, अगर ये कंसिस्टेंट बेसिस पे रहा, then ultimately company has to shut down, right? So can you understand the importance of this decision which you have to take at the beginning? आपको प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करना होता है कि इक्विटी शेयर्स कितने होने चाहिए, यानी कि ओन फंड्स एंड डेट फंड्स कितने होने चाहिए। टू सम लेवल इट इज गुड बिकॉज इट विल हेल्प टू मैग्नीफाई द रिटर्न्स, बट बियॉन्ड सर्टन लेवल इट विल अल्टीमेटली रिजल्ट इनटू शटडाउन ऑफ द कंपनी। एग्जांपल हमने डिस्कस किया था सुभिक्षा, डीएसके, दैट वाज बिकॉज ऑफ दिस ओनली, एक्सेसिव लोन। उनके कैपिटल स्ट्रक्चर में एक्सेसिव लोन था, इसीलिए तो उन्होंने उनको बंद करना पड़ा। सिमिलरली रिलायंस, अनिल अंबानी का जो यूनिट था वो भी सेम रीजंस की वजह से बंद हुआ, राइट? बेसिकली डिस्कशन पर्पस वाज टू अंडरस्टैंड हाउ इंपॉर्टेंट दिस कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस आर। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज मीन्ड बाय ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर? ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब क्या? ऑप्टिमम मतलब बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर अपने कंपनी के लिए। तो आपके हिसाब से ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, नाउ परसेंटेज वाइज इट विल बी डिफरेंट, बट आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करते टाइम ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? व्हेन यू आर डिसाइडिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, व्हाट शुड बी योर ऑब्जेक्टिव? जो हमने ऊपर लिखा है सेम, कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल शुड बी मिनिमम, एंड अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम हो तो उसकी वजह से क्या होगा? प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो हायर साइड होनी चाहिए, एंड रिस्क शुड बी ऑल्सो मिनिमम। तो द लीस्ट पॉसिबल रिस्क में आप कम से कम कॉस्ट ऑफ कैपिटल रख के ज्यादा से ज्यादा जब प्रॉफिट कमाओगे, दैट इज ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर यू, राइट?
सो बेसिकली इस चैप्टर में हम वही डिस्कस करने वाले, थ्योरी जो हम डिस्कस करने वाले, 4 थ्योरीज हमें डिस्कस करने हैं. देयर आर सम थ्योरीज व्हिच सेज कि ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर इज सर्टेन पॉइंट व्हिच, एक सेकंड, आपका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है that will be depending upon the capital structure, and some theories says कि cost of capital and capital structure में कोई relevance नहीं है. Okay, you'll understand it more better when we proceed with the discussion, but so far have you understood what do you mean by capital structure, what are the factors affecting capital structure, and then what is optimum capital structure. Simultaneously we have discussed की importance of capital structure भी क्या है, बराबर. Now before proceeding we'll write some formulas which are required. ओके, जो आपके नोट्स में नहीं है ना इधर मॉड्यूल में, लेकिन इंप्लाइड है, बट बेसिक फॉर्मूलेज है. ओके, तो सम फॉर्मूलेज विल राइट. आप क्या करो, नया हेडिंग लिखो, कैपिटल स्ट्रक्चर, एंड यू कैन राइट जस्ट मीनिंग. जस्ट राइट मीनिंग, सिंपल वर्ड्स में मीनिंग लिख सकते हैं. मिक्स ऑफ डिफरेंट सोर्स ऑफ कैपिटल, मिक्स ऑफ डिफरेंट सोर्स ऑफ कैपिटल. नोट्स रीडिंग का जो पार्ट है वो कल देखेंगे हम, ठीक है, जब आपके पास नोट्स होंगे. ये सेम पॉइंट्स हमने कंसीडर किया है, रिस्क, कंट्रोल, कॉस्ट. यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर ऐड किया हुआ है, प्रेफरेंस शेयर तो हमने ऑलवेज इट विल बी एट मिडल पॉइंट. ओके, चलिए, यहाँ पे सारे फॉर्मूलेज कवर नहीं किए गए, इसलिए सम फॉर्मूलेज वी हैव टू राइट. सो राइट डाउन हेडिंग फॉर्मूलेज. बाकी के पॉइंट आपको लिखने की इच्छा नहीं ना? ऑल दिस पॉइंट्स आर फ्रॉम योर नोट्स ओनली. Second, first, value of equity. Value of equity. Now, suppose earnings available to equity shareholders is 10 lakhs. Okay, and equity shareholders expectation. Now जो equity shareholders expect कर रहे हैं as a rate of return, that will be the cost of capital for the company. Suppose the cost of capital is 20%. What can be the value of equity shares? Say for example, simple words में, आप मेरे कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, एक शेयर्स के बारे में बात करते हैं, चलिए ये बड़े फिगर्स रहने दो. आप एक शेयर्स इन्वेस्ट कर रहे हो, ओके, आपको जो डिविडेंड मिलने वाला है, रिटर्न मिलने वाला है, इसे 10 रुपए मिलने वाला है. अब जो अमाउंट आप इन्वेस्ट करने वाले उसके ऊपर आपका एक्सपेक्टेड रेट है से 20%. मैक्सिमम आप कितना इन्वेस्ट करोगे मेरे कंपनी में? मैक्सिमम. नाउ दिस इज बेसिक मैथमेटिक्स. योर टारगेटेड रेट ऑफ रिटर्न इज 20%. ठीक है, आपको जो रिटर्न मिल रहा है इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड, दिस इज 10 रुपीज. तो मैक्सिमम कितना इन्वेस्ट करोगे ताकि आपका टारगेटेड रेट से आपको 10 रुपीज मिले? हाउ मच? 50? अरे सर, 50 रुपीज अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो 50 के ऊपर 20% आपका टारगेटेड रिटर्न था, तो 10 रुपीज मिल रहा है आपको. तो 50 से ज्यादा आप इन्वेस्ट नहीं करोगे, बराबर, क्योंकि 50 से ज्यादा मैंने आपको कहा कि 60 रुपीज मेरे कंपनी का शेयर प्राइस है. तो 60 रुपीज अगर इन्वेस्ट करते हो तो 60 रुपीज के ऊपर 20% मतलब 12 रुपीज आपको डिविडेंड चाहिए, लेकिन मैं तो आपको सिर्फ 10 रुपीज एज अ डिविडेंड दे रहा हूं, राइट? हाउ यू आर कैलकुलेटेड दिस 50 रुपीज 10 by 20%? means simply will be taking earnings available to as a investor divided by cost of your equity or whatever is the source, right? So same is the formula. Value of equity you can write as earnings available to equity shareholders, earnings available to equity shareholders divided by cost of equity, which is reflected as KE.
रिटर्न। अब इसके बेसिस पे हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी का भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी that is KE is equal to earnings available to equity shareholders divided by value of equity. Written. Now with same logic, third formula, value of debt what will be the formula for this? Same logic, यहाँ पे जो अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स होगा वहां पे अर्निंग्स अवेलेबल टू डेट होल्डर्स विच इज इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ डेट फंड्स होगा, दैट विल बी द इंटरेस्ट रेट। अगर आपको 100 रुपीज इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट रेट इज 10%, डेट अमाउंट क्या होगी 1000, 100 डिवाइडेड बाय 10%। एक प्रॉब्लम भी आपने लेवरेज में सॉल्व किया था ना, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करके वैल्यू ऑफ डेट कैलकुलेट किया था आपने 62,500 समथिंग, वहां पे भी सेम किया था। जस्ट वी आर राइटिंग बिकॉज दिस फॉर्मूलाज आर रिक्वायर्ड लेटर ऑन। ओके, सो दिस विल बी इंटरेस्ट अमाउंट divided by, here we'll write cost of debt, that is KD. So using this formula we can write formula for cost of debt. Cost of debt KD is equal to interest amount divided by value of debt. Have you all written? Now first we have written value of equity, second we have written value of debt. Now we can write value of firm. Now when we are studying this capital structure theories, we are assuming that there are only two sources of capital, one is equity and another is debt, because equity में part of the preference shareholders भी आएंगे and debt में सारे outsiders liability आएंगे, so we are assuming there are only two sources, right? So can we say the total value of equity and total value of debt will be the nothing but value of firm only, because whatever is the liability side that will be the same on the asset side, बराबर? So you can write value of equity plus value of debt. इसका एक और फॉर्मूला है बेस्ड ऑन दिस। हमने वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे कैलकुलेट किया? अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। वैल्यू ऑफ डेट कैसे कैलकुलेट किया? इंटरेस्ट अमाउंट दैट इज अर्निंग्स अवेलेबल टू डेट होल्डर्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ डेट। नाउ व्हेन आई एम कैलकुलेटिंग टोटल वैल्यू ऑफ फर्म, कैन आई से अर्निंग्स अवेलेबल टू टोटल फाइनेंसर्स डिवाइडेड बाय ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट? ओवरऑल मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी एज वेल एज कॉस्ट ऑफ डेट का कंसिडर करके एवरेज निकालने के बाद जो ओवरऑल आएगा, राइट? वी विल डिस्कस दिस पॉइंट, बट नाउ फर्स्ट राइट डाउन अर्निंग्स अवेलेबल टू financiers divided by overall cost of capital, which is reflected with KO. And earnings available to financiers means nothing but EBIT divided by earnings available to financiers means operating profit only, क्योंकि फाइनेंसर्स को जो अर्निंग्स है उसी में से इंटरेस्ट एंड डिविडेंड जाएगा, दैट इज नथिंग बट EBIT डिवाइडेड बाय ओवरऑल कॉस्ट। Have you all understood so far? Now based on this we can write overall cost of capital formula.
ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, we can denote it as KW. Both the meaning are same. Now based on this formula only we can write value is equal to EBIT upon KO. So KO क्या होगा? EBIT divided by value. So this will be EBIT divided by value of firm. इसका एक और फॉर्मूला भी है, वो लिख लो, देन विल डिस्कस दैट फॉर्मूला. वेट ऑफ डेट प्लस कॉस्ट ऑफ डेट, सॉरी इनटू कॉस्ट ऑफ डेट प्लस weight of equity into cost of equity, and right, WT means weight of debt. This is nothing but weighted average formula. To understand this, we'll see one simple example. ये जो formula हमने लिखा है, source equity debt. Suppose total capital required was 10 lakhs. Okay, हमने 6 lakhs इक्विटी से प्रोक्योर किया था, 4 lakhs डेट से प्रोक्योर किया था. दिस इज द अमाउंट. तो अगर ये अमाउंट 6 lakhs आउट ऑफ 10 lakhs, can we say 60% is the proportion of weight? That is, I am writing 0.60 and 0.40 is the proportion of debt. Now say cost of capital, इक्विटी का सपोज 20% है, डेट का 10%. ओके, तो यहां पे जो अमाउंट ऑफ रिटर्न में देना चाहिए वो कितना देना चाहिए? 6 लाख के ऊपर मुझे 20% से रिटर्न देना चाहिए इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड. तो दिस विल बी 1,20,000 एंड डेट को 4 लाख के ऊपर 10% से मुझे इंटरेस्ट पे करना है. सो दिस विल बी 40,000. इसका मतलब 10 लाख टोटल फंड्स प्रोक्योर करने के लिए मैंने टोटल रिटर्न कितना पे किया? 1,60,000. This amount I am paying only to raise that 10 lakhs. So I can say this is the total cost of my capital 10 lakhs. अगर मैं इसको परसेंटेज मुझे लिखना होगा 1,60,000 डिवाइडेड बाय 10 lakhs बराबर इंटू 100, बराबर ना. 10 lakhs के लिए अगर 160 तो 100 के लिए कितना? हाउ मच दिस विल बी परसेंटेज? 16% is my average cost of capital which will be comprising this 20 as well as 10, right? अब ये तो मैंने अमाउंट्स में लिखा है. अगर मैं इसको फॉर्मूला में लिखूं या सिर्फ प्रपोर्शन में लिखूं, तो अगर मैं इसको वेट इनटू कॉस्ट करूं, दैट इज 0.60 into 20 कितना आएगा? 1.12 एंड 0.40 into 0.10 0.12 एंड 0.04 बराबर ना. चेक कीजिएगा 0.16 into वो जो 20% है, परसेंट प्रेस करो, 0.20 लिखो, बराबर. तो दिस विल बी 0.16 टोटल. ये हमने क्या किया है? 0.12 कैसे कैलकुलेट किया? वेट इनटू कॉस्ट, दैट इज ये हमने लिखा है वेट इनटू कॉस्ट, एंड देन वी हैव एडेड दिस 0.4. and how this 0.04 we have calculated? This is weight into again cost of debt. So this we have written weight of debt into cost of debt. This is nothing but the weighted average formula which you might have studied in the foundation. But assuming you're not remembering, but now you already have understood this formula. आप जब भी weighted average calculate कर रहे हो तो सिंपली आपको क्या करना होगा? weight से मल्टीप्लाई करना होगा. उसमें सिर्फ डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ वेट्स था फॉर्मूला में, लेकिन यहाँ पे समेशन ऑफ वेट्स विल बी ऑलवेज 1, क्योंकि जो प्रोपोर्शन है उसकी टोटल यहाँ पे हमेशा 1 ही रहेगी. Therefore we are not dividing by 1, right? Otherwise this formula we can use to calculate weighted average cost of capital. Have you all understood so far? चलिए, this was some of the formulas which will be required. आपके मॉड्यूल में बस इतना ही फॉर्मूला दिया था.
वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू EBIT डिवाइडेड बाय ओवरऑल कॉस्ट। तो हमने वो फॉर्मूला लिख लिया है। ओके, नाउ शैल वी प्रोसीड विद द कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज। बेसिकली हमें ये 4 थियरी स्टडी करने हैं। कैन यू सी ऑन द स्क्रीन? कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज, इसमें 2 पार्ट में डिवाइड किया है, कैपिटल स्ट्रक्चर रिलेवेंस थ्योरी एंड कैपिटल स्ट्रक्चर इररिलेवेंस थ्योरी। ठीक है, एंड कैपिटल स्ट्रक्चर रिलेवेंस थ्योरी में नेट इनकम एंड ट्रेडिशनल अप्रोच आ रहा है। ओके, मोडिग्लन एंड मिलर अप्रोच विद टैक्स टाइमिंग पेंडिंग रखो, वो मोडिग्लन एंड मिलर अप्रोच का बाद में देखेंगे, विद टैक्स एंड विदाउट टैक्स। एंड इररिलेवेंस थ्योरी में नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच एंड मोडिग्लन एंड मिलर अप्रोच। आई नो दैट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग, रिलेवेंस इररिलेवेंस मतलब क्या। हम क्या करेंगे, इसके लिए एक चार्ट ड्रॉ करेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, जस्ट 2 मिनट्स, कैपिटल स्ट्रक्चर जैसे जैसे आपका चेंज होगा, will the cost of capital and value of firm will change होगा। now this is what the issue of that capital structure relevance theory and irrelevance theory। दो थ्योरी ऐसे है जो कहते हैं कि जैसे जैसे आपका कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल चेंज होगा। एंड अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल चेंज हो रहा है तो वैल्यू ऑफ कैपिटल भी सॉरी वैल्यू ऑफ फर्म भी चेंज होगा, क्योंकि हमने वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला क्या लिखा था, EBIT अपॉन ओवरऑल कॉस्ट। तो अगर ये ओवरऑल कॉस्ट चेंज हो रहा है तो वैल्यू चेंज होगी। देयर आर 2 theories which says as and how your capital structure changes, your overall cost of capital, and because of that the value of firm will change. That is called as capital structure relevance theory, right? Means they say that their capital structure influences your value of the firm। okay, but there are 2 theories, net operating income approach and Modigliani and Miller approach। they say कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कुछ भी हो, whether it is 10% of equity, 90% of debt, or 90% of debt, 10% of equity, दोनों केस में कैपिटल स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है। बट जो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच एंड मोडिग्लियन मिलर अप्रोच क्या कहते हैं कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कुछ भी हो, वैल्यू ऑफ फर्म एंड ओवरऑल कॉस्ट विल रिमेन कांस्टेंट, दे विल नॉट बी चेंजिंग। हैव यू अंडरस्टूड? बस इतना ही। क्यों ऐसे कह रहे हैं वो हम थ्योरी में ही देखने वाले एक एक करके। ओके, व्हाट इज देयर बेसिस ऑफ देयर प्रपोजिशन, व्हाट इज द प्रपोजिशन? फर्स्ट 2 थ्योरीज कौन से? नेट इनकम अप्रोच एंड ट्रेडिशनल अप्रोच। कहां गया ये दो, नेट इनकम अप्रोच एंड ट्रेडिशनल अप्रोच सेज कि कैपिटल स्ट्रक्चर विल इन्फ्लुएंस द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड वैल्यू ऑफ फर्म। मींस एज एंड हाउ योर कैपिटल स्ट्रक्चर चेंजेस, योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड वैल्यू ऑफ फर्म विल चेंज। बट दिस नेट इनकम अप्रोच and Modigliani and Miller approach says capital structure has nothing to do with the value of firm and cost of capital। जैसे जैसे आपका कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज होगा वैसे वैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड वैल्यू ऑफ फर्म विल नॉट चेंज। एंड आई एम सेइंग कैपिटल स्ट्रक्चर, नॉट द अमाउंट ऑफ कैपिटल। अमाउंट ऑफ कैपिटल जब बढ़ेगा तो डेफिनेटली चेंज होगा, बट कैपिटल तो हम सेम रख रहे हैं। मतलब आपका टोटल कैपिटल 10 लाख, दिस विल रिमेन कांस्टेंट। यहां पे इक्विटी सपोज पहले 60% थी, डेट 40% था, दिस इज वन कैपिटल स्ट्रक्चर। नाउ आई एम चेंजिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर, मैं क्या कर रहा हूं, डेट में इंक्रीज कर रहा हूं सपोज। ओके, मतलब यहां पे 4 लाख का मेरा डेट था, मैंने 3 लाख का और डेट लिया, एंड नाउ आई एम रीपेइंग द इक्विटी। आर यू गेटिंग? मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स का कैपिटल में रिड्यूस कर रहा हूं, तो क्या होगा, 7 lakhs विल बी द डेट एंड 3 lakhs विल बी इक्विटी। तो यहां पे 30% एंड 70% will be the capital structure। तो टोटल कैपिटल सेम रह रहा है, लेकिन मिक्स ऑफ दैट कैपिटल इज चेंजिंग, राइट? तो फर्स्ट 2 थ्योरी सेज जैसे ये चेंज हो रहा है वैल्यू ऑफ फर्म विल चेंज। नेक्स्ट 2 थ्योरी सेज जैसे ये चेंज हो रहा है योर वैल्यू ऑफ फर्म विल रिमेन कांस्टेंट, इट वोंट चेंज। तो ये जो चार्ट दिया है वो सिंपल भाषा में हम चार्ट लिखे, फॉर्मूला के नीचे लिख लीजिए कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज, राइट डाउन हेडिंग। इसमें 2 पार्ट बनाइए। राइट डाउन सिंपल वर्ड्स में, कैपिटल स्ट्रक्चर affects
cost of capital and value of firm. Capital structure affects cost of capital and value of firm. ये एक पार्ट है. And second part, capital structure does not affects cost of capital and value of firm. अब इसमें दो थ्योरीज है. नेट इनकम अप्रोच, एंड यहां पे ट्रेडिशनल अप्रोच. यहाँ पे नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, जिसको कॉमनली शॉर्ट फॉर्म में NOI भी कहते हैं. यहाँ पे Modigliani and Miller approach. Modigliani and Miller approach, उसको MM अप्रोच भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में. Written? Basically what I was saying that capital relevance theory, irrelevance theory, now have you understood? यानी कि फर्स्ट पार्ट में कहते हैं कि वैल्यू ऑफ फर्म एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल चेंज होगा जैसे जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज होगा, मिक्स जैसे जैसे चेंज होगा. लेकिन सेकंड पार्ट जो थ्योरी है वो कहते हैं कि आपका वैल्यू ऑफ फर्म कांस्टेंट रहेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कांस्टेंट रहेगा, भले आप कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे भी चेंज करो, लेकिन वैल्यू ऑफ फर्म एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल रिमेन कांस्टेंट. नाउ व्हाट आर द बेसिस ऑफ देयर प्रपोजिशन दैट वी विल डिस्कस. फर्स्ट ऑफ ऑल, हैज एवरीवन अंडरस्टूड टिल हियर? Any difficulty? हाँ संदेश, shall we continue? Okay. Have you written this? Now before starting with the theories, there are certain assumptions on the basis of which these theories are dependent. Okay. तो just read करेंगे, उसके बाद continue करेंगे. Right? So what are the assumptions? Now there are general assumptions and specific assumptions. General assumptions means this will be applicable to all the capital structure theories. And specific assumption मतलब उस पर्टिकुलर थ्योरी की वो अजम्पशन रहेगी. ठीक है. तो यहाँ पे जो फर्स्ट दो पार्ट है वहां पे ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर का कंसेप्ट आएगा, क्योंकि हर टाइम में कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम चेंज हो रही है. तो वेरेवर द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मिनिमम, वैल्यू ऑफ फर्म इज मैक्सिमम, दैट विल बी ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर. बट ये जो थ्योरीज है यहाँ पे कोई ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर का कंसेप्ट ही नहीं आएगा, बिकॉज दे आर सेइंग एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज वेल एज द वैल्यू ऑफ फर्म विल रिमेन कांस्टेंट, वो चेंज ही नहीं होगा. राइट. Now what are the general assumptions? First, there are only two sources of funds, that is debt and equity. तो preference share capital हम मान के चल रहे कि नहीं है. ठीक है. Then the total assets of firm and its capital employed are fixed. यानी कि total capital constant रहेगा, capital structure change हो सकता है. Are you getting? जैसे कि हमने एग्जांपल देखा था, 10 लाख अगर कैपिटल हो तो 10 लाख अमाउंट सेम रहेगी, लेकिन इक्विटी डेट का जो मिक्स है 10%, 90% या 20%, 80% हम चेंज कर सकते. ठीक है ना. वो कैसे चेंज करेंगे? से एग्जांपल, मेरा टोटल कैपिटल था 10 लाख एंड करंट कैपिटल स्ट्रक्चर वाज इक्विटी से 20%, डेट 80%. दिस इज वन कैपिटल स्ट्रक्चर. अब मुझे चेंज करना है, मुझे अब रिस्क कम करना है, तो व्हाट आई कैन डू, मैं नए इक्विटी शेयर्स ले सकता हूं एंड देन व्हाटएवर जो इक्विटी शेयर से पैसे आएंगे मैं डेट को रीपेमेंट कर सकता हूं. ठीक है. तो इसलिए मैंने 40% अब इक्विटी शेयर्स कर दिया, तो जो 20% मैंने फंड्स लिए होंगे इक्विटी शेयर होल्डर से, मैंने डेट होल्डर्स को रीपे किया, तो यह होगा 60%.
मुझे और भी रिस्क कम करना है, इसलिए therefore I called for new equity shares against. Now it can be 60%, 40%, right, and so on. So this mix can change, but in all cases the total capital is remaining same, that is 10 lakhs, right? तो यहाँ पे assumption में यही दिया है कि total capital employed is fixed, the capital structure can change. So we'll continue to read. No change in the capital employed, however the debt equity mix can be changed either by borrowing the debt to repurchase the equity shares, यानी कि लोन लेके हम इक्विटी शेयर्स कम कर सकते हैं, और raising equity to repay debt, right? The next assumption is all earnings are distributed to equity shareholders, यानी कि no retained earnings. जितने भी पैसे कंपनी कमा रहे, इंटरेस्ट एक्सेट्रा पे करके जो अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स होगा, वो पूरा का पूरा डिविडेंड पे करेंगे. कंपनी विल नॉट रिटेन एनी अमाउंट. देन फर्म अर्न्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नॉट एक्सपेक्टेड टू ग्रो, मतलब कांस्टेंट रहेगा एंड लॉस होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, ये अजम्पशन है. ओके. बिजनेस रिस्क आर अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट एंड इज नॉट अफेक्टेड बाय द फाइनेंस मिक्स डिसीजन, यानी कि ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा. ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट हम चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर चेंज हो रहा है तो क्या होगा, ऑपरेटिंग लेवरेज चेंज होगा, अल्टीमेटली रिस्क चेंज होगा कंपनी का, एंड बिकॉज ऑफ दैट रिस्क चेंज हो रहा है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का रिस्क परसेप्शन चेंज होगा, तो दे विल चेंज द इक्विटी एक्सपेक्टेड रिटर्न. बराबर. सो वी आर अज्यूमिंग दैट ऑपरेटिंग रिस्क इज सेम. सिंपल वर्ड्स में फिक्स्ड कॉस्ट स्ट्रक्चर है, वो चेंज नहीं करोगे, वो कांस्टेंट ही रखोगे. ओके. देन वी आर अज्यूमिंग नो टैक्सेशन. फॉर सिंपलिसिटी ऑफ कैलकुलेशन हम टैक्सेशन के बगैर कैलकुलेशन करेंगे. मोडी गिलान एंड मिलर अप्रोच में हम दोनों में करेंगे, विदाउट टैक्सेशन एज वेल एज विद टैक्सेशन, हाउ देयर विल बी द कैलकुलेशन. एंड वी आर अज्यूमिंग दैट इन्वेस्टर्स हैव सेम सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेक्टेड अर्निंग्स, यानी कि इन्वेस्टर्स का जो एक्सपेक्टेशन है that will remain same for all the persons, means every person will be expecting similar returns from that company, right? So these are just general assumptions. Now can we start with the net income approach? First approach, net income approach. तो पहले तो देखते हैं कि उनकी थ्योरी क्या है, कौन से बेसिस पे वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज होगा आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल चेंज होगा, ओवरऑल कॉस्ट, एंड उसकी वजह से वैल्यू ऑफ फर्म चेंज होगा. ओके. फर्स्ट टेल मी, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेट, so they are same, continuing to assume cost of equity is greater than cost of debt. Okay. Now जो proposition है उनका, जो theory में दिया है, हम example से समझने की कोशिश करते हैं. So say total capital is 10 lakhs. Okay. Currently we are having debt equity mix, say 60% equity, 40% debt. ओके. यानी कि 0.6 एज अ इक्विटी एंड 0.4 एज अ डेट, यानी कि 6 लाख इक्विटी से लिया था हमने, 4 लाख डेट से लिया था, 10 lakhs टोटल कैपिटल. बराबर. कॉस्ट ऑफ इक्विटी में मान के चल रहा हूं 20% एंड कॉस्ट ऑफ डेट 10%. ऑलवेज कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज हायर देन कॉस्ट ऑफ डेट. ओके. तो यहां पे मेरा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा, ये ऑलरेडी सीन द कैलकुलेशन, वेट इनटू कॉस्ट. तो यहाँ पे वेट कितना है 0.60 एंड यहाँ पे कॉस्ट है 20, तो ये आएगा 12 एंड 0.40 इंटू 10 यानी कि आएगा 4, यानी कि 16% मेरा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा. बराबर. एंड मान के चलते कि मेरा EBIT जो है वो 3 लाख है, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 3 lakhs. तो वैल्यू ऑफ फर्म क्या रहेगी, हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म, EBIT डिवाइडेड बाय ओवरऑल कॉस्ट, हमने ऊपर फॉर्मूला में लिखा है. तो क्या आएगी, कैलकुलेट करके बताओ मुझे. 3 lakhs डिवाइडेड बाय 16%, 18,75,000. सो करंटली करंट कैपिटल स्ट्रक्चर में टोटल कैपिटल जो 10 लाख है उसके ऊपर हमें कॉस्ट कितना पे करना पड़ रहा है, 16%, एंड टोटल वैल्यू ऑफ फर्म इज 18,75,000. नाउ व्हाट विल हैपन इफ आई चेंज द कैपिटल स्ट्रक्चर, विल सी सेकंड पार्ट. अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा डेट कंटेंट था 40%, आई एम इंक्रीजिंग दिस डेट कंटेंट. तो ऑब्वियसली मेरा इक्विटी शेयर्स कम होगा, क्योंकि जहां से मैं डेट ले रहा हूं सेम मनी आई एम यूजिंग फॉर रीपेमेंट ऑफ इक्विटी. टोटल कैपिटल आई कैन नॉट चेंज. तो नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज 40% इक्विटी एंड 60% डेट.
दैट इज 0.4 एंड 0.6। अब जो कॉस्ट ऑफ रिस्पेक्टिव इक्विटी शेयर्स एंड डेट जो था वो तो कांस्टेंट रहेगा। सो 20% एंड 10%, दिस अगेन assumption that cost of equity and cost of debt will remain constant, वो चेंज नहीं होगा। ओके तो यहां पे कितना आएगा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, 0.4 into 20 means 18, sorry 8, and 0.6 into 10 that is 6, तो कितना आएगा 14%। and what will be your value of firm EBIT अगर वो कितना 3 lakhs हो तो 3 lakh divided by 14%, 21,42,000, whatever it is, 21 lakh something something। now can you see कि पहले डेट सॉरी पहले कैपिटल स्ट्रक्चर में मेरा टोटल कैपिटल कितना था 16%। now as and how I have increased the debt content into my capital structure, my overall cost has reduced to 14%, right? and because of this what happens, denominator कम होने की वजह से न्यूमरेटर जो वैल्यू आएगी वो तो बढ़ेगी क्वेश्चन, राइट? तो यहाँ पे 18,75,000 जो पहले वैल्यू थी, now the value of firm has increased to 21,42,000। आर यू गेटिंग? सो नेट इनकम अप्रोच व्हाट दे आर सेइंग इज जैसे जैसे आपका कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल चेंज हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वैल्यू ऑफ फर्म आल्सो इज चेंजिंग। एंड व्हाट दे आर सजेस्टिंग इज, जब चेंज हो रहा है मतलब ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर का कांसेप्ट आएगा। व्हाट दे आर सजेस्टिंग इज यूज एज मच पॉसिबल एज डेट, क्योंकि आप यहां पे देख रहे हो जब 40% से 60% गया यानी कि डेट इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस इज इंक्रीजिंग योर टोटल कैपिटल। तो एवरेज आउट जब होगा तो मेजर प्रपोर्शन इज चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, राइट? सो इफ मेजर प्रपोर्शन इज चीपर सोर्स तो एवरेज जो आएगा वो कम आएगा। यहां पे अगर मैं 80% कर दूं इसको तो क्या होगा वो 0.80 एंड 0.20, तो 0.20 इंटू 24 एंड 0.80 इंटू 10 मतलब 8 आएगा, बराबर ना? तो कितना आएगा 12%। तो यू कैन सी अगर 80% कर दूं तो फर्दर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज रिड्यूसिंग। So net income approach is suggesting use maximum possible debt content, that will be optimum capital structure। जितना ज्यादा पॉसिबल हो आप डेट कंटेंट यूज करो। ऑब्वियसली पॉसिबल मतलब कंसीडरिंग द रिस्क पार्ट, राइट? क्योंकि आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम आएगा। एंड टू शो इन द फॉर्म ऑफ से ग्राफ, on x axis we are writing debt equity mix, means as and how we are going on right hand side debt content is increasing, ठीक है? तो यहां पे कॉस्ट ऑफ डेट तो कांस्टेंट रहेगा, बैंक जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे वो तो कांस्टेंट रहेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स विल बी आल्सो कीपिंग देयर कॉस्ट ऑफ इक्विटी एज कांस्टेंट। व्हाट हैपेंस, एज एंड हाउ डेट कंटेंट इंक्रीजेस व्हेन वी मूव ऑन राइट हैंड साइड, तो आपके टोटल कैपिटल में चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस इंक्रीज होगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस द एवरेज जो है आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो रिड्यूस होगा। दिस इज द थ्योरी, दैट्स इट। आपको कैलकुलेट करने के लिए क्या आएगा, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आइए एक बार देख लेते हैं, आप रीड करोगे अभी? अरे आपके पास ये नहीं ना, नोट्स नहीं, सॉरी। चलो वी विल रीड, शुड वी रीड? जो हमने डिस्कस किया वही पार्ट है, बट विल रीड। Assumptions, apart from general assumptions, following additional assumptions are there. First, no corporate tax, we have already considered. KD is cost of capital, cost of debt, and K is cost of equity. इसको हम capitalization rate भी कहते हैं। Why we call it as capitalization rate? Suppose, just I'm explaining कि cost of capital को capitalization rate भी कहते हैं। Suppose एग्जाम में capitalization rate दिया हो से 10%, तो वहां पे मत कहना कि सर ने कुछ बताया नहीं कैपिटलाइजेशन रेट क्या है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कॉस्ट कैपिटलाइजेशन रेट्स आर सेम। उसको कैपिटलाइजेशन रेट्स क्यों कहते हैं? से आपको डिविडेंड मिल रहा है 10 रुपीज, ओके? कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 10%। मैक्सिमम वैल्यू आप कितना पे करने के लिए तैयार होगे? 100, राइट? ये 100 क्या है? वैल्यू ऑफ द फर्म, राइट? ये कैसे कैलकुलेट किया आपने? 10 को 10% से डिवाइड किया, राइट? कैन आई से दिस 100 इज कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ दिस डिविडेंड? 10 रुपीज इज द रेवेन्यू इनकम,
एंड 100 रुपीज द वैल्यू ऑफ द फर्म, जो है आपका कैपिटल में वैल्यू ऑफ दैट इक्विटी, राइट? सो दिस 100 इज कैपिटलाइज्ड रेट, और सॉरी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ 10 रुपीज एज डिविडेंड। एंड किस रेट से आपने कैपिटलाइज किया इसको? 10%, राइट? इसलिए इसको कैपिटलाइजेशन रेट भी कहते हैं। Are you getting? Because this is the rate which we are using to capitalize the income to calculate the capital value. Okay? तो cost of capital and capitalization rates are same. तो इसलिए KD को debt capitalization rate भी कहा जाता है, या simple words में cost of debt. Okay? And KE को cost of equity और equity capitalization rate. Okay? Cost of debt will be always less than cost of equity, that we have seen. KD and KE remains constant at all levels of debt equity mix. यहाँ पे हमने ग्राफ में भी KE and KD को constant ड्रॉ किया था, right? Now theory and explanation. Debt is a cheaper source of finance than equity due to tax saving effect and investors expectations, risk expectation, right? Use of cheaper funds, debt funds in total capital structure will reduce the overall or weighted cost of capital, since debt percentage increases in the total capital structure, barabar? Hence the degree of financial leverage increases the overall cost of capital, that is weighted average. WACC means weighted average cost of capital will decline with every increase in the debt content in total capital employed, जो हमने एग्जांपल 3 एग्जांपल से देखा था, 40%, 60% एंड 80% इक्विटी का अज्यूम करके, इक्विटी डेट. सो वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू EBIT अपॉन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, and the value of firm will increase when overall cost of capital will decline. ये भी हमने एग्जांपल में देख लिया. Where debt content is reduced, reverse will happen, that is weighted average cost of capital will increase, thereby reducing the value of firm. Thus firm can increase its value and lower the overall cost of capital by increasing the proportion of debt, right? The value of firm will be maximum when weighted average cost of capital is minimum. Thus theory suggests that total, practically total possible नहीं, इसलिए मैक्सिमम पॉसिबल डेट फाइनेंसिंग फॉर मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसको हम ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कहेंगे. जितना पॉसिबल हो सके उतना मैक्सिमम डेट यूज करो. ओके? एंड जब आपको प्रॉब्लम आएगा, प्रॉब्लम विल बी फॉर कैलकुलेशन ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट कैसे करोगे? हमने ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एक फॉर्मूला लिखा था, व्हाट, EBIT डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ फर्म, राइट? तो EBIT तो आपको दिया रहेगा. ओके? EBIT में से अगर आप इंटरेस्ट लेस करते हो तो आपको क्या मिलेगा? EBT, राइट? देन वैल्यू ऑफ इक्विटी कैलकुलेट कर सकते हो, EBT. टैक्स तो हमने अज्यूम किया है इज नॉट देयर, मतलब EBT इज द अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. प्रेफरेंस शेयर भी हमने अज्यूम किया है विल नॉट बी देयर, राइट? मींस अल्टीमेटली EBT इज नथिंग बट अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. So EBT divided by cost of equity, I'll be getting value of equity. Value of debt, I can calculate interest upon cost of debt. बराबर? Same formula we have already written. Therefore we can calculate value of firm, that is value of equity plus value of debt. बराबर? S and D लिखा है, that is same market value of equity plus market value of debt. तो अब मेरे पास EBIT है and value of firm भी है, so I can calculate overall cost of capital, that is EBIT upon value of firm. Are you all getting? So यहाँ पे same ये diagrammatically हमने present किया. Any difficulty in the first theory? Shall we solve problem on this theory first of all? चलिए, आज के दिन प्रॉब्लम सिर्फ स्क्रीन से रीड करो. टुमारो विल बी गेटिंग नोट्स. प्रॉब्लम नंबर 32 से स्टार्ट करेंगे. रीड प्रॉब्लम नंबर 32. Also read 33rd. Both are same thing. It is continuation. NI approach means net income approach. Okay.
आपको ईबीआईटी दिया हुआ है, देन 8 lakhs आपके डिबेंचर है, उसका कॉस्ट भी दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज गिवन 12.5%, आपको वैल्यू ऑफ फर्म कैलकुलेट करना है। मतलब सेम स्टेप्स में ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट ईबीटी divided by cost of equity, value of debt, so you'll be getting value of firm, and EBIT divided by value of firm, you'll be getting overall cost of capital. Should we write down this? So क्या करेंगे, write down heading calculation of value of firm, calculation of value of firm and overall cost of capital, calculation of value of firm and overall cost of capital using net income approach. दो कॉलम्स निकालेंगे, एक कॉलम होगा क्वेश्चन नंबर 32 के लिए और एक कॉलम होगा 33 के लिए, क्योंकि वैसे तो कंटेंट सेम रहेगा। 33 इज सिंपली कंटिन्यूएशन ऑफ 32 ओनली। शुरुआत कहां से करेंगे, ईबीआईटी से। ईबीआईटी कितना है, 2 लाख ना, लेस इंटरेस्ट। ठीक है, अब फर्स्ट कॉलम में डेट कितना था, 8 lakhs इंटू 10%, 80,000। यहां पे सिर्फ वर्किंग दिखाओ, 8 lakhs इंटू 10%। अब सेकेंड कॉलम दैट इज 33rd कॉलम में डेट कितना है, assume in the problem given above that firm decide to raise further debt by 2 lakhs, यानी कि ऑलरेडी 8 lakhs था प्लस 2 lakhs यानी कि 10 lakhs, तो 10 lakhs into 10%, 1 lakh। So you will be getting EBT 1,20,000 and 1 lakh। Now you have got EBT, this is nothing but earnings available to equity shareholders, cost of equity आपको दिया हुआ है, so based on that we can calculate the value of equity, बराबर। तो इसके नीचे हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी लिखेंगे। How much it is been given, 12.5% है ना, this will remain constant for all debt equity mix। Now we can calculate value of equity, this you can write as EBT divided by cost of equity, 9,60,000 ना, यहाँ पे कितना आएगा, 8 lakhs। Now value of debt, this is given 8 lakhs and 10 lakhs, बराबर। डेट की जो अमाउंट है वो 8 lakhs थे, एंड सेकेंड कॉलम में हमने 2 लाख से डेट इंक्रीज किया है। सो नाउ आई कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ फर्म, this I can write E plus F, 17,60,000 and 18 lakhs, and then we can calculate overall cost of capital।
This will be EBIT divided by value of firm. EBIT upon value of firm. One one 36%, right? And here 11.11%. बस इतना ही है। नेट इनकम अप्रोच में इससे अलग प्रॉब्लम नहीं रहेगा, इतना ही होगा। ईबीआईटी दिया रहेगा, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है ईबीटी डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यू विल बी कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ इक्विटी, ऐड करो वैल्यू ऑफ डेट, यू विल बी गेटिंग वैल्यू ऑफ फर्म, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ फर्म, यू विल बी गेटिंग ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जस्ट गो थ्रू प्रॉब्लम, सी वेदर इफ यू आर इन डिफिकल्टी। हियर यू कैन सी जब डेट कंटेंट इंक्रीज हुआ, सेकंड कॉलम में डेट कितना था 10 lakhs, तो डेट कंटेंट जब इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल नीचे गया एंड वैल्यू ऑफ फर्म विल was increased, right? Therefore this net income approach proposition is, as and how your capital structure is changing, the value of firm and cost of capital will change, right? And he was advising कि जितना possible हो सके उतना debt use करो, क्योंकि overall cost कम होगा, value of firm will rise. Just go through this. नेट इनकम अप्रोच में इससे अलग कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगा आपको, एंड एज इट इज वेरी सिंपल, द प्रोबेबिलिटी ऑफ आस्किंग इन द एग्जाम इज ऑल्सो वेरी लेस। इसके ऊपर मोस्टली क्वेश्चन नहीं आते, बट हो सकता है कभी कभार नेट इनकम अप्रोच एंड मोडिग्लेन एंड मिलर अप्रोच जैसे मिक्स करके पूछा जाए 5 मार्क के लिए, तो इन दैट केस इट विल बी कंप्राइजिंग 2 और 3 मार्क्स। बस स्टेप्स याद करने हैं आपको, ठीक है? एनी डिफिकल्टी, शुड वी प्रोसीड? आर यू ऑल अवेक? चलिए अब हम क्या करेंगे, 10th प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। 10th क्वेश्चन रीड कीजिए यानी सॉल्व भी कीजिए। Same heading you will be writing, same steps, calculate and tell me the answer. Completed? $11 point exactly. So write down, written or written na? So just check, have you written heading calculation of overall cost and value of firm?
वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना रहा है? 24, 2,40,000 क्या? कंप्लीटेड। क्या कंप्लीट? नाउ एक प्रॉब्लम एक और सॉल्व करेंगे एंड देन विल स्टार्ट विद द न्यू थ्योरी। ठीक है, एक्चुअली होमवर्क देना था सिमिलर प्रॉब्लम्स, बट कल होंगे होमवर्क्स। रीड 31st प्रॉब्लम, ये वाला। एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल नीचे दिया गया, अज्यूम नेट इनकम अप्रोच, नहीं तो हम वेटेड एवरेज निकाल सकते थे बाय यूजिंग द फॉर्मूला वेट एक्सेट्रा, बट नेट इनकम अप्रोच यूज करना है, मतलब द इट विल बी EBIT डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ फर्म। एंड अगेन देयर आर सेकंड पॉइंट, मतलब सेकंड पार्ट, what happens to cost of capital of A limited if employs 120 lakh debts to finance a project which earns operating income of 40 lakhs। मतलब एग्जिस्टिंग कंपनी छोड़ के हम एक्सपांड कर रहे हैं, एंड एक्सपांशन में हमें एडिशनल 120 लाख जो लगने वाला है वो डेट से यूज करेंगे। ठीक है, एंड वहां से ऑपरेटिंग इनकम होगा 40 lakhs। अज्यूम नेट इनकम मेथड applied and there are no taxes। should we write it down? have you read? एग्जिस्टिंग हमें दिया है ऑपरेटिंग इनकम 50 lakhs। पहले तो अगर एग्जिस्टिंग के ऊपर फोकस करें तो 50 lakhs ऑपरेटिंग इनकम दिया है, उसमें से इंटरेस्ट लेस कर सकते हैं, ईबीटी मिलेगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज बीन गिवन टू यू 18%, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालेंगे। वैल्यू ऑफ डेट तो इन्होंने दिया हुआ है, कितना है वैल्यू ऑफ डेट? कॉस्ट ऑफ डेट दिया हुआ है एंड इंटरेस्ट अमाउंट इज बीन गिवन, सो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेट आल्सो, राइट? एंड देन वी कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ फर्म एंड देन वी कैन कैलकुलेट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चलिए राइट डाउन हेडिंग, कैलकुलेशन ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। 31st प्रॉब्लम, calculation of overall cost of capital। The column serial number, particulars, and then two columns, present situation and proposed situation, मतलब जो प्रोजेक्ट एक्सपांड करने के बाद। पहले तो सिर्फ हम प्रेजेंट सिचुएशन का कैलकुलेट करेंगे, फिर बाय सेम कॉलम सीरियल नंबर ए EBIT, यह बीन गिवन 50 lakhs, तो आपकी इच्छा हो तो ऊपर रुपीज इन लैक्स लिख सकते हैं, देन विल राइट फिगर्स इन लैक्स, नहीं तो 50 lakhs पूरा लिखो, कोई दिक्कत नहीं। लेस इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट दिया हुआ है 12 lakhs, सो ईबीटी आएगा 38,
कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना दिया हमें? 18%. Therefore, value of equity 38 divided by 18%. Right over here, serial number C upon D कितना आ रहा है? 211.11. Then value of debts. Now value of debts is not directly been given. You have been given interest 12 and cost of debt is also 12%. ये देखिए. So 12 lakhs divided by 12%. हमने already देखा था. Value of debt is equal to interest amount divided by cost of debt. 100. Value of firm 311.11 here plus F. अब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल KO कितना आएगा? EBIT डिवाइडेड बाय वैल्यू 16.07%. एग्जैक्टली. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. बराबर. अब सेकेंड पार्ट लिखे. तो क्वेश्चन देखिए, सेकेंड पार्ट में क्या दिया है? एग्जिस्टिंग जो अपना बिजनेस था वो तो रहेगा. नाउ वी आर एक्सपांडिंग. एक और प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें 120 लाख का डेट फाइनेंस यूज कर रहे हैं. ओके. एंड उस प्रोजेक्ट में से 40 लाख हमें ऑपरेटिंग इनकम होगा. राइट. तो यहां पे आप मुझे बताएंगे कि EBIT कितना लिखना चाहिए? 40 लिखेंगे या 90 लिखेंगे? 90 ना, क्योंकि नया प्रोजेक्ट में 40 इनकम हो रहा है. एग्जिस्टिंग 50 जो बिजनेस है आपका वो तो कंटिन्यू रहेगा ही. राइट. सो इट विल बी 90. Existing profit 50 will be continued and from new proposal 40 you will be getting additionally. बराबर. तो 90 you have to write. Remaining part will remain same. अब इंटरेस्ट कितना होगा? अब इंटरेस्ट के लिए क्या दिया है उन्होंने? Okay, tell me what should be the interest now? Existing जो 12 लाख था वो तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि existing हमने कोई रिपे नहीं किया. एंड नए प्रोजेक्ट के लिए जो लोन चाहिए था 120 लाख, दैट आल्सो वी हैव टेकन फ्रॉम डेट. तो 120 लाख into 12% उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना होगा. So how much it will be? 26.4. This will be calculated as working. अब ब्रैकेट में दिखाइए 12 existing interest plus 120 lakhs का जो डेट है उसके ऊपर भी 12% से एडिशनल इंटरेस्ट. It will be coming to 14.4. Tell me, have you understood till here? So now you can calculate EBT. 90 minus this will be 63.6. Cost of equity तो constant रहेगा. How much? 353.33 बराबर. वैल्यू ऑफ डेट कितना रहेगा? 220. एग्जिस्टिंग 100 तो सेम रहेगा प्लस 120. यहाँ पे भी ब्रैकेट में लिखिए 100 प्लस 120. तो टोटल वैल्यू ऑफ फर्म 573.33. 15.70%. Have you all completed? Any difficulties so far? Everyone? So with this we have completed with the net income approach.
Should we start net operating income approach discussion part? डिस्कशन तो कर ले 5 मिनट में, पहले 5 ही मिनट में डिस्कशन कर लेते जितना हो सके। चल भी अब जो नेक्स्ट थ्योरी है दैट इज नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच विच सेज योर कैपिटल स्ट्रक्चर विल नॉट हैव एनी इन्फ्लुएंस ऑन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड द वैल्यू ऑफ फर्म। मींस दिस थ्योरी सेज कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कुछ भी हो, whether you are changing not changing doesn't matter, value of firm and overall cost of capital will remain constant. On what basis he is saying, we'll try to understand. Now say existing capital structure जो मेरा था, इक्विटी था 60%, डेट था 40%, that is 0.60, 0.40, 20 and 10 was the capital structure जो हमने अब तक एग्जांपल में कंसीडर किया था। सो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12 4 एवरेज आउट करके यानी कि 16%, बराबर। दिस वाज द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। नाउ आई वांट टू इंक्रीज डेट कंटेंट इनटू माय कैपिटल स्ट्रक्चर से 60% एंड 40%, तो 0.60 एंड 0.40। ओके, नाउ नेट इनकम अप्रोच में स्पेसिफिक अजम्पशन में हमने देखा था कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल रिमेन कांस्टेंट एंड कॉस्ट ऑफ डेट आल्सो विल रिमेन कांस्टेंट, लेकिन नेट ऑपरेटिंग इनकम में ऐसे कोई अजम्पशन नहीं। ओके, ही इज सेइंग कि कॉस्ट ऑफ डेट कांस्टेंट रहेगा, लेकिन कॉस्ट ऑफ इक्विटी की कोई गारंटी नहीं है वो कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहां पे कॉस्ट ऑफ डेट तो हम मान के चल रहे हैं कि कांस्टेंट रहेगा 10%। नाउ यू टेल मी एज कंपेयर टू फर्स्ट, जो सेकंड सिनेरियो है, फर्स्ट में क्या था, डेट 40% था, सेकंड में डेट है 60%। ओके, तो एज कंपेयर टू फर्स्ट, सेकंड सिनेरियो में क्या कंपनी का रिस्क बढ़ रहा है या कम हो रहा है? जब डेट कंटेंट बढ़ रहा है मतलब रिस्क बढ़ रहा है। नाउ अज्यूम यू आर द इन्वेस्टर्स, यू आर द शेयर होल्डर्स। ठीक है, पहले आपने जब कंपनी में इन्वेस्ट किया तो आपने देखा कंपनी का 60% ओन फंड्स है, मींस कंपनी इज प्रेडोमिनेंटली रनिंग ऑन ओन फंड्स, रिस्क कम है कंपनी का। अब कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने रिस्क इंक्रीज किया। ओके, नाउ व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द रिस्क, कंपनी मतलब डायरेक्टर्स ने रिस्क इंक्रीज किया, बट अल्टीमेट रिस्क कौन बेयर करेगा? ओनर्स ओनली, एंड ओनर्स आर इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो व्हेन रिस्क इज इंक्रीजिंग, विल यू एक्सपेक्ट same rate 20% after increasing the rate, or you will also increase the rate of return? जैसे जैसे कंपनी में रिस्क इंक्रीज हो रहा है, आप आपके एक्सपेक्टेशन भी इंक्रीज करोगे। एज पर नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच ही सेज कि ये जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो इंक्रीज होगा क्योंकि रिस्क बढ़ रहा है, एंड दिस विल इंक्रीज इन सच अ मैनर दैट एवरेज आउट करके 16% ही ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। मींस जो बेनिफिट मिल रहा है आपको चिपर सोर्स ऑफ फाइनेंस इंक्रीज करने के बाद, नेट इनकम अप्रोच में हमने देखा था कि जैसे जैसे चिपर सोर्स ऑफ फाइनेंस इंक्रीज होगा कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट कैपिटल में, वैसे वैसे आपका एवरेज कम होगा, बराबर। तो प्रोपोर्शन ऑफ डेट व्हेन इट इज इंक्रीजिंग, इट इज अ बेनिफिट फॉर द कंपनी, क्योंकि एवरेज करते टाइम चिपर सोर्स इंक्रीज हो रहा है मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होना चाहिए। सो व्हेन दिस इज रिड्यूसिंग, दिस बेनिफिट इज एग्जैक्टली ऑफसेटेड बाय इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। मतलब जितना बेनिफिट हो रहा था उतना इन्वेस्ट शेयर होल्डर्स उनका एक्सपेक्टेशन बढ़ा देंगे। ठीक है, यहां पे अगर हम कैलकुलेट करें रिवर्स मैनर में तो ये आएगा 6, तो यहां पे आना चाहिए 10। कैलकुलेट करके मुझे जस्ट बताओ कि 10 डिवाइडेड बाय 0.40 कितना आना चाहिए? हाउ मच? 25। यानी कि इस तरह से होगा, इक्विटी शेयर होल्डर जो पहले आप थे 20% एक्सपेक्ट कर रहे थे, अब कंपनी ने क्या किया, डेट कंटेंट 40% से 60% कर दिया, मतलब रिस्क बढ़ा दिया। नाउ यू विल एक्सपेक्ट 25% रिटर्न फ्रॉम द कंपनी, एंड इसकी वजह से क्या होगा, एवरेज अगेन विल रिमेन कांस्टेंट 16%। प्रैक्टिकली एग्जैक्टली सेम मैनर में नहीं होगा, बट दिस इज द थियोरेटिकल पार्ट। ओके, व्हाट ही इज सेइंग इज जब आप डेट कंटेंट इंक्रीज कर रहे हो तो आपका बेनिफिट बढ़ रहा है क्योंकि चिपर सोर्स ऑफ फाइनेंस बढ़ रहा है, ये बेनिफिट ऑफसेट होगा किसकी वजह से? कॉस्ट ऑफ इंक्रीज सॉरी कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज होने की वजह से। हैव यू अंडरस्टूड? इसलिए क्या होगा, इफ यू प्रेजेंट ग्राफिकली, कॉस्ट ऑफ डेट तो कांस्टेंट रह रहा है, राइट? अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कांस्टेंट होता तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल वुड हैव बीन रिड्यूसिंग, राइट? बट नाउ व्हाट हैपेंस, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स का रिस्क बढ़ रहा है, इक्विटी शेयर होल्डर्स उनका कॉस्ट सेम नहीं रखेंगे, वो इंक्रीज होगा।
एंड ये इंक्रीज होने की वजह से ओवरऑल कॉस्ट जो है वो अब कांस्टेंट रहेगा। हैव यू अंडरस्टूड? एंड व्हाट ही इज सेइंग इज प्रैक्टिकली जो इन्वेस्टर्स है वो कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं देखते, वो क्या देखते हैं, किस रिस्क क्लास से कंपनी बिलोंग कर रही है। मींस ईच इंडस्ट्री विल बी हैविंग वन पर्टिकुलर रिस्क क्लास। से फॉर एग्जांपल स्टील इंडस्ट्री है, एक रिस्क क्लास होगा इसका। से दूसरी कंपनी है टेलीकॉम, अब टेलीकॉम एज इट इज रिलेटिंग टू टेक्नोलॉजी, यहां पे रिस्क क्लास ज्यादा रहेगा, राइट? नाउ व्हाट दिस थियरी इज सेइंग, रिस्क क्लास में मल्टीपल कंपनीज आते हैं। से फॉर एग्जांपल स्टील इंडस्ट्रीज में ए कंपनी है, बी कंपनी है, सी कंपनी, तीनों का वैसे तो टोटल कैपेसिटी सेम है, ओनली कैपिटल स्ट्रक्चर आर डिफरेंट। तो दिस नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच दे आर सेइंग कि क्योंकि ऑल द थ्री कंपनीज आर हैविंग सेम रिस्क क्लास, ओवरऑल कॉस्ट यहां पे सपोज 15% हो तो 15% कांस्टेंट रहेगा, ओनली डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क इक्विटी शेयर होल्डर्स के एक्सपेक्टेशन चेंज होते जाएंगे। सपोज सी कंपनी ने ज्यादा डेट कंटेंट लिया है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के यहां पे एक्सपेक्टेड होंगे 30%। ए कंपनी का सपोज रिस्क कम है, डेट कंटेंट कम है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का एक्सपेक्टेड होगा 20%, लेकिन एवरेज आउट करने के बाद 15% कांस्टेंट रहेगा। ठीक है? एंड टेलीकम्युनिकेशन से फॉर एग्जांपल इट इज रिलेटिंग टेक्नोलॉजी, इसलिए जियो आने के बाद वहां पे रिस्क ज्यादा है, तो रिस्क ज्यादा होने की वजह से व्हाट दे विल बी इन्वेस्टर्स विल बी एक्सपेक्टिंग विल बी मोर। सपोज यहां पे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 25 25 25 आ रहा है एवरेज, ये कांस्टेंट ही रहेगा हर एक कंपनी के लिए, वेदर इट इज जियो, वोडाफोन एक्सेट्रा। क्योंकि जब मैं वोडाफोन से टेलीकॉम कंपनी में इन्वेस्ट करता हूं तो मेरा कंसीडरिंग रिस्क एक टारगेटेड रिटर्न रहेगा, राइट? सो दिस विल रिमेन कांस्टेंट। Okay, only what will be changing is cost of equity and cost of debt. Cost of debt also will remain constant. Cost of equity change होगा, किस proportion में change होगा? रिस्क परसेप्शन के बेसिस पे, जैसे जैसे डेट कंटेंट बढ़ रहा है रिस्क बढ़ रहा है, अगर रिस्क बढ़ रहा है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स उनके कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ा दे, एंड बिकॉज ऑफ दिस एक तरह से आपको बेनिफिट हो रहा है। बेनिफिट क्या हो रहा है? डेट कंटेंट बढ़ रहा है, मतलब चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस का वेट बढ़ रहा है यहाँ पे। ओके, बट एट द सेम टाइम इक्विटी की कॉस्ट बढ़ रही है, देयरफॉर एवरेज आउट सेम रहेगा उसका कॉस्ट। Have you all understood? Again, this part we'll read tomorrow and then continue with discussion of net operating income approach tomorrow, and then we will start solving the problems. जो एक्स्ट्रा लेना था वो नेक्स्ट वीक में ही लेंगे, ठीक है? ड्यू टू सम रीजन इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक एक्स्ट्रा टुडे एंड टुमारो, तो नेक्स्ट वीक में हम एक्स्ट्रा लेंगे। ओके, वंस आई रिटर्न that time for 3-4 days we'll be having extra class just to compensate those 3-4 holidays. Okay, so we'll conclude.